Treatment is NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. اور اگر فیور ہے رومٹوائڈ آرتھرائٹس میں اس میں پیراسیٹامول ایسیٹامینوپین دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیراسیٹامول یا ایسیٹامینوپین اور گلوکوکارٹیکائڈ دیتے ہیں. گلوکوکارٹیکائڈ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں, ایب نارمل اینٹی باڈی پروڈکشن کو کیا کر سکے, کام کرے, کیونکہ گلوکوکارٹیکائڈ از امیونو سپریسو. ٹھیک ہے. 32-year-old patient present with history of sudden onset acute جی اوکے, سم ڈیزیز کے اندر ایج میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, کوئی اسپیسیفک وے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ کینسرز ہے جو مڈل ایج میں کامن ہے, کچھ ینگر میں ہے, کچھ اولڈر میں ہے, لیکن کچھ ڈیزیز کے لیے ایج کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ لوگ پھر کہو گے کہ ہم مینشن کیوں کرتے, یہ ایتھکس ہے. جب آپ پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں تو آپ ایج کا ضرور پوچھتے ہیں. ایج کے بغیر ہم پیشنٹ کی پرسکرپشن نہیں دیتے, تو ایج شوڈ بی دیئر, چاہے اس کا امپورٹنس ہو یا نہ ہو, تو ہم ایج ضرور لکھتے ہیں. آپ لوگوں کو میں نے ایک کنڈیشن پڑھایا تھا لاسٹ ٹائم, بی پی ایچ, بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا. پروسٹیٹ گلینڈ ہے میل میں, تو ایجڈ پرسن میں یورینری obstruction کرتے ہیں کہ ینگ میں, ایجڈ میں, تو سم ٹائم ایج کین میٹر, لیکن سم ٹائم ایج از اے پارٹ آف اور ہسٹری. ٹھیک ہے. So 32-year-old patient present with a history of sudden onset acute pain in the first metatarsal joint, tarsal joint, elbow joint and poor appetite and mild weight loss. ٹھیک ہے. Investigation was done. Investigation shows CBC normal and joint aspiration shows monosodium urate crystal. It is called MSU crystal. یہ ڈائگنوز کیا ہے؟ ویری پاپولر کوشچن. کیا ہے؟ رومٹوائڈ آرتھرائٹس ہے. رومٹوائڈ آرتھرائٹس. اوکے. گاؤٹ. ہاں. اوکے. واٹ آر دا پوائنٹ وچ فیور گاؤٹ ناٹ رومٹوائڈ آرتھرائٹس؟ مجھے وہ پوائنٹ بتائے. ہاں. اوکے. کرسٹل بھی ہٹائے, یہ نہیں دیا ہے ایگزامینر نے. اوکے. اس نے رومٹوائڈ آرتھرائٹس اس لیے بولا کہ ادر سسٹمک فیچر ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, لیکن رومٹوائڈ آرتھرائٹس پیشنٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس لوگوں میں ارلی مارننگ جوائنٹ اسٹیفنس ان دا ہینڈ ہوتی ہے, اور یہاں پہ مسئلہ گریڈ ٹو سے ہے, میٹاٹارسل بون سے ہے, تو رومٹوائڈ آرتھرائٹس یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہاں پہ میں نے 6 مینشن نہیں کیا ہے, رومٹوائڈ آرتھرائٹس موسٹ لائکلی فیمیل میں ہوتا ہے, آٹو امیون ڈیزیز ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں لوگ تو اس کی جو پین ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ایک چیز کو دیکھ کر ہم ڈائریکٹ رومٹوائڈ آرتھرائٹس نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. اب دس از اے کنڈیشن, ایسا پرابلم جو گریڈ 2 سے سٹارٹ ہو جائے, نیچے پاؤں سے سٹارٹ ہو جائے اور اس میں ادر سسٹمک فیچر آ جائے, دس از اے ڈائگنوسٹک آف اکیوٹ گاؤٹ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اکیوٹ گاؤٹ کہتے ہیں. یہ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو لکھ دیا تاکہ رومٹوائڈ آرتھرائٹس اور اس میں ڈفرینسیشن کریں. اس کو ہم کہتے ہیں اکیوٹ گاؤٹ. لیکن اگر آپ لوگوں کو ایگزامینر نے MSU کرسٹل دیا ہے تو دیٹ از مور اسپیسیفک ٹوورڈ دا ڈائگنوز آف اکیوٹ گاؤٹ. ٹھیک ہے. اب اکیوٹ گاؤٹ کے مزید کوشچن کیا ہے وہ بھی سن لیں. اکیوٹ گاؤٹ ان لوگوں میں ہوتا ہے, اٹ از ڈیو ٹو ہائپر یوریسیمیا,
ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जिन लोगों की यूरिक एसिड लेवल क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज द रिस्क फॉर गाउट कंडीशन। अब इधर देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखे, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डैश। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड बॉडी के किस मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। आंसर इज प्यूरिन। उसका नाम क्या है, प्यूरिन। डीएनए के अंदर दो रिंग्स होती है, एक पैरामिडीन है और एक प्यूरिन है। जो प्यूरिन रिंग है डीएनए का, उसकी डिस्ट्रक्शन से जो एंड प्रोडक्ट बनती है उसका नाम क्या है, यूरिक एसिड है। यहाँ पे आप लोग लिखे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन इज अ रिंग ऑफ डीएनए, ये डीएनए का रिंग है। इसकी मेटाबॉलिज्म से डेली बेसिस पे क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड वो अलग चीज है, ठीक है ना, वो अलग चीज है, उससे अलग मैं बात करता हूँ। इसको कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड गाउट, वो ड्रग की वजह से होता है, लेकिन सम गाउट आर नॉट ड्यू टू ड्रग्स। ठीक है ना, मतलब ये है प्यूरिन जितना, अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है तो उसकी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड वी नीड फॉर द बॉडी और डोंट नीड, डू नॉट नीड फॉर द बॉडी, इट शुड बी एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। ये किसके जरिए, ये भी क्वेश्चन आता है क्लिनिकल कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीटरी पाथवे क्या है, वो रीनल है, किडनी के जरिए यूरिन में जाती है। इधर यूरिन में, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी बाय द हेल्प ऑफ यूरिन। अब क्वेश्चन ये है, ऐसे लोग जो जेनेटिकली माँ बाप से उसको एक जीन ऐसा आया है कि उसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल है, तो अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाए तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा कि कम, ज्यादा बनेगा। अब इधर आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ कि नॉर्मली जब यूरिक एसिड बन जाए तो इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ किडनी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर अंडर फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब अगर किडनी काम नहीं कर रही, वो रीनल फेलियर पेशेंट है, किडनी फेल है, तो वो यूरिक एसिड निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी। तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो इसका मतलब हाइपर यूरिसेमिया हो जाएगा। नंबर 1, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपर यूरिसेमिया इन पाकिस्तान इज रीनल फेलियर। ये हमसे क्यूज भी आता है, ठीक है। जिस बंदे की किडनी फेल हो, उसकी यूरिक एसिड एक्सक्रीशन नहीं होगी, द कंडीशन विल लीड टू हाइपर यूरिसेमिया। 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट, प्यूरिन। अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल है तो फिर ज्यादा यूरिक एसिड बनेंगे कि कम, ज्यादा बनेगी। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में अगर पहले 2 यूरिक एसिड बनते थे, अभी 10 बनेंगे, तो एक्सेस यूरिक एसिड इज नॉट हैंडल बाय द किडनी। अगर ज्यादा यूरिक एसिड बनेंगे, वो किडनी हैंडल नहीं कर पाएगी, तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इनटेक। अगर ऐसा फूड हम खाए जिसमें यूरिक एसिड हो, जिस तरह मीट ले ले, मीट, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं। तो यूरिक एसिड तब भी बढ़ सकता है अगर हम उस चीजों की इंटेक ज्यादा कराएं जिसमें क्या हो, यूरिक एसिड हो। तो इंक्रीज इंटेक करे, या मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाए, या अंडर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, या फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग ऐसा इस्तेमाल करे जिससे यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस क्या हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल थायजाइड डायूरेटिक्स। कौन से डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स का नाम सुना है कि नहीं, लूप डायूरेटिक्स का नाम सुना है कि नहीं। लूप डायूरेटिक्स में लेजिक्स इंजेक्शन आता है, फ्यूरोसिमाइड आता है इसके अंदर। इसमें एक ड्रग है जो टीबी में हम देते हैं, पायराजीनामाइड। कौन सा ड्रग आता है, पायराजीनामाइड। ये सारे के सारे वो ड्रग है जो यूरिक एसिड लेवल को ब्लड में बढ़ा सकते हैं। इसको कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर यूरिसेमिया। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए और इसका वजह कोई ड्रग यूज हो, इसको ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। अब देखें एमसीक्यूज आ जाएगा, 90% हाइपर यूरिसेमिया इज ड्यू टू अंडर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। क्लियर है। अब इधर देखें, अगर यूरिक एसिड बॉडी में क्या हो जाए, बढ़ जाए, दीज यूरिक एसिड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल में कन्वर्ट होगी और उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल आर डिराइव्ड फ्रॉम यूरिक एसिड, और ये क्रिस्टल फिर जाकर डिपोजिट हो जाएगी डिफरेंट ज्वाइंट में, डिपोजिशन इन ज्वाइंट, एंड द फर्स्ट ज्वाइंट व्हिच इज टारगेट बाय दिस क्रिस्टल इज द ग्रेट टो। ये कौन सा होता है, ग्रेट टो। जो ग्रेट टो है लोअर लिम्ब में, इसमें जो ज्वाइंट है इसके अंदर इनिशियल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है एमएसयू क्रिस्टल की, और एमएसयू क्रिस्टल बनी किस चीज से है, यूरिक एसिड है।
ऐसा कंडीशन जिसमें एक्सिस यूरिक एसिड लेवल किस में कन्वर्ट हो जाए, MSU क्रिस्टल में, और वो जाकर ग्रेड 2 की ज्वाइंट में डिपॉजिट हो जाए और पेशेंट को पेन कराए, कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट गाउट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट गाउट पेयर कहते हैं। तो एक्यूट गाउट के अंदर हाइपर यूरिसेमिया होता है। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ गए, वो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। रीनल फेलियर पेशेंट हो सकता है, पेशेंट बाहर से ज्यादा यूरिक एसिड ले रहा है, पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है, इन सब कंडीशन में। हम टीबी के अंदर कितने ड्रग यूज करते हैं, टीबी आइसोनियाजिड यूज करते हैं, रिफाम्पिसिन यूज करते हैं, इथाम्ब्यूटोल यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं, पायराजिनामाइड यूज करते हैं। एक एमसीक्यूज अपने पास पक्का याद करें, the only TB drug which can cause hyperuricemia in gout, that is pyrazinamide। वो क्या है, pyrazinamide। कैसे, pyrazinamide inhibit the excretion of uric acid from the kidney। नॉर्मली तो यूरिक एसिड किडनी से बाहर जाती है, लेकिन ये इसकी एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। तो ये जनाब गाउट है। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड बढ़ा सकती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये प्यूरिन है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। एक और कंडीशन भी इसके साथ आप लोग लिख सकते हैं, उसका नाम है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देखिए ट्यूमर से मुराद क्या है, कैंसर है। अगर कैंसर हो तो कैंसर में हर एक चीज एबनॉर्मली बढ़ जाती है, सेल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितना ट्यूमर में सेल की मल्टीप्लिकेशन बढ़ती है, उतना साइड बाय साइड सेल की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन भी होती है। हाँ जी, प्यूरिन कहाँ पे होता है, एहसान बताएगा। वेयर इज प्यूरिन, प्यूरिन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए किस में होता है, न्यूक्लियस में। तो ट्यूमर लाइसिस, ऐसा पेशेंट जिसमें कैंसर हो और उसमें सेल की क्या हो रही हो, लाइसिस। तो जितना सेल लाइसिस होगा, तो प्यूरिन तो सेल के अंदर होता है, तो उससे उतना क्या निकलेगा, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड बढ़ने से डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल के चांसेस होंगे, कैन लीड टू acute gout। So any condition which lead to lysis of the cell, it will lead to release of purine। और प्यूरिन मेटाबोलाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में याद रखे, प्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू ज़ेंथीन। इनिशियल ये एमसीक्यूज याद रखें, प्यूरिन से जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, ज़ेंथेन। ज़ेंथेन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू हाइपोज़ेंथेन। इससे क्या बन जाएगा, हाइपोज़ेंथेन। और यहाँ पे एमसीक्यूज है, ऐसा एंजाइम जो ज़ेंथेन को किस में कन्वर्ट करे, हाइपोज़ेंथेन में। द एंजाइम इज ज़ेंथेन ऑक्सीडेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, ज़ेंथेन ऑक्सीडेज। और जब हाइपोज़ेंथेन बन जाए तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। एंड यूरिक एसिड नॉर्मली excreted from the body by the kidney, especially in the urine। ये है बायोकेमिस्ट्री, ये नॉर्मल यूरिक एसिड फॉर्मेशन है कि भाई प्यूरिन कन्वर्ट होता है ज़ेंथेन में, ज़ेंथेन कन्वर्ट होता है हाइपोज़ेंथेन में, और हाइपोज़ेंथेन से क्या बनता है, यूरिक एसिड, और वो फिर किडनी से बाहर निकलेगी। आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, आंसर इज ज़ेंथेन ऑक्सीडेज। ज़ेंथेन, जिसको हाइपर यूरिसेमिया हो, जिसका यूरिक एसिड पहले से ज्यादा हो, उसमें हम एक ड्रग देंगे जो किसको ब्लॉक करेंगे, ज़ेंथेन ऑक्सीडेज। अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे तो फर्दर यूरिक एसिड नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी तो ज्वाइंट पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एमसीक्यूज में याद रखे, ऐसा ड्रग जो माइनस का मतलब इनहिबिट करे किस चीज को, ज़ेंथेन ऑक्सीडेज को, और यूरिक एसिड बनाना क्या करे, कम करे। द ड्रग इज कॉल्ड एलोप्यूरिनोल। इस ड्रग का नाम है एलोप्यूरिनोल, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड इनहिबिट ज़ेंथेन ऑक्सीडेज, आंसर इज एलोप्यूरिनोल। क्लियर है। सो एलोप्यूरिनोल ड्रग कैन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट कंडीशन। अब मैं आप लोगों को दो चीजें बता रहा हूँ, बहुत कॉमनली जो क्वेश्चन में आता है। देखें, गाउट का मतलब ये है, पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने 3 दिन पहले एक पेशेंट डायग्नोज किया था गाउट में, ठीक है ना, पता नहीं उसने कितनी गोलियां खाई थी। वो कहते यार कि ये जो नीचे जगह है ना, ये बहुत ज्यादा पेन कर रहा है बहुत टाइम से, और इसमें कोई बर्निंग सेंसेशन भी होती है। मैंने कहा यूरिक एसिड करा के तो आया ना, उसका यूरिक एसिड 7 की बजाय 11 थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। यूरिक एसिड का पेशेंट जब भी आता है गाउट में, तो आप लोगों को वो पेन बताएगा लोअर लिम्ब से। लोअर लिम्ब में, या तो वो पेशेंट किडनी का पहले से होगा पेशेंट, किडनी फेलियर का,
या वो कह रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं है, हेल्दी पर्सन है लेकिन उसका यूरिक एसिड क्या है, वो ज्यादा है। ज्वाइंट पेन अगर ग्रेड 2 से स्टार्ट है ना, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जल्दी क्या करना चाहिए, सीरम यूरिक एसिड लेवल करना चाहिए। अब इधर देखे, हमें क्वेश्चन आएगा एनएलई में, ये क्लिनिकल क्वेश्चन है कि अगर किसी को गाउट है, क्या है, गाउट है, इसका मतलब इसकी यूरिक एसिड, अगर एक और क्वेश्चन, 7 तक यूरिक एसिड नॉर्मल होती है, 6.8 और 7 मिलीमोल, किसी का अगर यूरिक एसिड 7.5 आ जाए तो ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, हाइपर यूरेसेमिया है, बट द पर्सन हैज नो गाउट। याद रखे, एवरी हाइपर यूरेसेमिया पेशेंट हैज नो गाउट जब तक वो यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट ना हो, क्रिस्टल में, और वो ज्वाइंट पेन ना कराए। लेकिन क्रिस्टल में कन्वर्ट यूरिक एसिड तब होते हैं जब ये 8.5 को क्रॉस करे। तो 8.5 को जब ये क्रॉस करे तो फिर ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल में, और फिर वो गाउट कराता है। एवरी गाउट पेशेंट हैज हाइपर यूरेसेमिया, बट एवरी हाइपर यूरेसेमिया पेशेंट डू नॉट हैव गाउट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। माइल्ड हाइपर यूरेसेमिया है तो वो तो गाउट नहीं है, पेशेंट को कहे कि अपना एहतियात करे खाने वगैरह में, तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ सकता है। अब पेशेंट आए हैं क्लिनिक में, आप लोगों को एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, अक्यूट अटैक है, पेशेंट को बैठे बैठाए बहुत ज्यादा अक्यूट अटैक हुआ है, सडनली ऑनसेट, बैठे बैठाए उसको अक्यूट सडन ऑनसेट पेन हुआ है। ये इतना पेन होता है, सीवियर पेन इन द ग्रेड टो, कि बंदा अपना पाँव जमीन पे नहीं रख सकता, ये इतना पेन होता है अक्यूट अटैक में। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू डिक्रीज अक्यूट अटैक पेन स्पेशली इन द अक्यूट गाउट? आंसर इज एनसेड। ये एमसीक्यू है, ड्रग ऑफ चॉइस है, हम एनसेड देते हैं। हम अगर पेशेंट आए तो पेशेंट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड कम करना, स्टेबिलिटी, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करे फिर बाद में यूरिक एसिड कम करे। तो स्टेबलाइज करने के लिए पेन किलर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एनसेड्स। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि एक पेशेंट है, वो तो गाउट का पहले से मरीज है, 2-3 साल से पहले वो डायग्नोज हुआ था, लेकिन अभी उसको एक ड्रग देना है जो ज्यादा टाइम तक वो लेता रहे और इसका यूरिक एसिड भी क्या रहे, कम रहे, एलोप्यूरिनोल इज द ड्रग। सो एलोप्यूरिनोल इज द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। एलोप्यूरिनोल ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ये टैबलेट घर के लिए देते हैं ताकि पेशेंट दिन में एक खाया करे ताकि उसका यूरिक एसिड ना बढ़े। लेकिन अक्यूट अटैक में आप लोगों ने एलोप्यूरिनोल नहीं, डायरेक्ट एनसेड देने हैं ताकि हम पेन को कम कर सके। स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट इज और प्रायोरिटी, ठीक है। हम सबसे पहले पेशेंट की प्रायोरिटी पे स्टेबिलिटी के लिए पेन किलर देंगे, उसके बाद हम फिर क्या दे सकते हैं, आंसर इज एनसेड्स वगैरह के बाद हम फिर एलोप्यूरिनोल दे सकते हैं। एनसेड्स में कौन सा एनसेड मोस्ट इफेक्टिव है, नीचे लेके एंडोमेथासिन। कौन सा देते हैं, एंडोमेथासिन। और एंडोमेथासिन डक्टस आर्टीरियोसिस को भी क्या करता है, क्लोज करता है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पीडीए का नाम सुना है, सीवीएस में डक्टस आर्टीरियोसिस को क्लोज करने का काम किसका है, एंडोमेथासिन। और इधर भी हम यूज कर सकते हैं। तो एंडोमेथासिन इज द मोस्ट पोटेंट NSAID that is used for the acute attack of gouts। ये acute attack of gouts के लिए बहुत कॉमनली क्वेश्चन है। Another question, अगर एक और क्वेश्चन आ जाए, the patient is having chronic gout attack and the doctor is going to prescribe allopurinol, but few days later the patient develops skin rashes। उस पर क्या चीज आ गई, स्किन रेशेस, इसका मतलब पेशेंट एलर्जिक था। तो आप फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कि डिसकंटिन्यू? तो नेक्स्ट बैकअप ड्रग याद रखें, बैकअप हम फेबोक्सेट देते हैं, फेबोक्सोस्टेट। फेबोक्सोस्टेट इज द ड्रग विच इज अ बैकअप ड्रग फॉर एलोप्यूरिनोल। अगर एलोप्यूरिनोल एलर्जिक है या एलोप्यूरिनोल इनसेंसिटिव है, तो द नेक्स्ट बैकअप ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट दैट इज फेबोक्सोस्टेट। फेबोक्सोस्टेट का काम भी किसको ब्लॉक करना है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। लेकिन एक और काम भी करता है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये रीनल एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है, यूरिक एसिड को बनाने भी नहीं देगा, और जो बन गए हैं उसको किडनी से बाहर भी निकालेगा। अब आप लोग कहोगे फिर यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से इसलिए नहीं करते, अगर ये काम ना करे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम लो से स्टार्ट करेंगे, हाई पे जाएंगे, ठीक है। तो एलोप्यूरिनोल फर्स्ट देंगे, फेबोक्सोस्टेट बाद में देंगे। एक और क्वेश्चन लेके, बहुत कॉमन इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर एग्जामिनर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इसमें इसने दिया है, देखे ये क्लू लिखे, क्लू एग्जाम के लिए, अ पेशेंट हैविंग joint pain
and aspiration of joint shows कैल्शियम, ये आप लोगों ने पिन पॉइंट याद रखना है, CPP क्रिस्टल डायग्नोसिस। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है। Crystal is very very important. If you find out the joint aspiration crystal is MSU, monosodium urate, that was gout. पेशेंट आया था जॉइंट पेन के साथ, और वो भी पेन ग्रेड टो का लाएगा, वो भी किधर का लाएगा, ग्रेड टो, मसला ग्रेड टो से स्टार्ट होगा, और हम सोच रहे होंगे कि ये क्या है, गाउट है। तो हम जब जॉइंट एस्पिरेशन करते हैं, कंफर्म हम गाउट को तब करते हैं जब जॉइंट एस्पिरेशन में कौन सा क्रिस्टल आ जाए, MSU। अगर आप गाउट सस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपने जॉइंट एस्पिरेशन कर दी और उसकी एस्पिरेशन पे हमें कौन से क्रिस्टल मिले, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, इट इज कॉल्ड सूडो गाउट। इसको हम क्या कहते हैं, सूडो गाउट। ये फॉल्स गाउट है, इसका मतलब ये है इट इज नॉट द ट्रू गाउट, बिकॉज ट्रू गाउट डिपेंड ऑन MSU क्रिस्टल। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू गाउट एंड सूडो गाउट इज डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल। एक में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट है और एक में मोनोसोडियम यूरेट है। क्लियर है। अब आप लोग कहोगे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन की काज क्या है, एग्जैक्ट काज स्टिल अननोन। ये इडियोपैथिक होता है लेकिन बहुत से लोग आते हैं उसकी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज याद रखे, जिस बंदे को सूडो गाउट हो उन लोगों में एक और कंडीशन होती है, एसोसिएटेड कंडीशन। एक याद रखे एग्जाम में, एसोसिएटेड कंडीशन। जिन लोगों को सूडो गाउट हो इन लोगों में एसोसिएटेड कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड हीमोक्रोमाटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस इज आयरन ओवरलोड कंडीशन। ये क्या है, आयरन ओवरलोड कंडीशन है। ऐसा कंडीशन जिसमें एक्सेस आयरन बॉडी में बिल्ड हो जाए एंड कैन डैमेज मल्टीपल ऑर्गन, इसको क्या कहते हैं, हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस